Hi students, how are you all? Today I'll teach you chapter number 3, points of view. We have already completed 2 chapters in SEM 2, and in these 2 chapters I explained you what is peer review, what is summary, what is sequence, and what is reference and what is a source. You come across all these new terms. Students, these terms are very useful for your writing skills. Okay, so don't ignore these terms. If you don't understand regarding all these things, you can ask in online lecture. In Zoom lectures, you can ask. Okay, today you will come across a new term, point of view. Here, the chapter points of view itself has an idiom, point of view. Point of view. I'll explain you what is point of view. Point of view means your own understanding, your own thoughts, your thinking. Okay. So here we will see how people differ in their points of view. Here in this chapter, it is given the newspaper article. Okay, a newspaper article is given. Have you read any English newspaper? Okay, whatever language it is, doesn't matter, but in each language newspaper articles are given. Here, one article is given from Jalandhar News, and the article is about chaos reigns as traffic rules are ignored. And this article was written by Jatin Singh. This article was written by Jatin Singh. So keep all these things in mind. Let's start the chapter chaos. What is chaos? Chaos means disorder. What is the meaning of chaos? Disorder. Okay, disorder means अव्यवस्था, अंधाधुंध हो जाता है ना, that is called chaos. Then reigns. Reigns means rules. Prevails. Rules or prevails. Reigns means rules or prevails. So chaos prevails because traffic rules are ignored. Ignored means not followed. This article was written by Jatin Singh in the Jalandhar News, in a newspaper. Okay, and the date is first of all the place is given Jalandhar, and then the date is given January 19. Okay, this article was published in Jalandhar newspaper on January 19. Okay, so let's start with the chapter. Here, orders are made to ignore and rules made to forget. In Jalandhar, orders are made. Orders means the authorities made order and they are made to ignore. And rules made to forget. Rules are made to forget. यानी कि rules का और orders का कोई meaning ही नहीं है. Okay, so starting इस तरह से हो रहा है इसका. Then callous disregard for public inconvenience on the part of municipal corporation. Okay, callous disregard. Callous means unsympathetic, जिसमें कोई भी sympathy नहीं है. Unsympathetic. Okay, means no sympathy at all. Disregard means disrespect. Okay, so unsympathetic disrespect for public inconvenience. Inconvenience का मतलब क्या होगा? Discomforts, जिसमें पब्लिक को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है. On the part of the municipal corporation. You all know that municipal corporation takes care
about all the issues of the particular place. Okay, so here Jalandhar city and the municipal corporation of Jalandhar, they don't have any sympathy or any respect for public's inconvenience. Jalandhar and indifference on the part of traffic police is just the beginning of the problem that results in a chaotic traffic situation in the city. Okay, Jalandhar means MCJ, Municipal Corporation Jalandhar, and indifference on the part of traffic police. The traffic police also does not show the interest in public affairs of inconvenience in traffic situation. So here Jalandhar traffic police and municipal corporation Jalandhar, they just is just the beginning of the problem. They are responsible for the chaotic traffic situation in the city. Why? See the reason. In 2006, the MC passed orders banning the parking of scooters and four-wheelers along the Tri-Junction in front of its office. Okay, in 2006, the MC means Municipal Corporation. Municipal Corporation, जहाँ का भी जो भी सिटी है वहाँ का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. ओके, so municipal corporation passed orders banning means to stop, banning the parking of scooters and four-wheelers along the Tri-Junction in front of its office. म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सामने ट्राई जंक्शन है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्राई जंक्शन? ट्राई जंक्शन मीन्स अ प्लेस वेयर 3 रोड्स कम टुगेदर. ओके, जहाँ पर 3 रोड मिलते हैं वो जगह, दैट इज़ कॉल्ड ट्राई जंक्शन. तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके सामने ट्राई जंक्शन है, वहाँ पर पार्किंग है स्कूटर्स और फोर व्हीलर्स का, उसे बैन कर दिया है, उसे स्टॉप कर दिया है. ओके, बट the road leading from PNB Chowk to Jyoti Chowk, these are the areas. Okay, streets के नाम हैं. किसके names हैं? Streets. Okay, so the road leading from PNB Chowk to Jyoti Chowk is still today overcrowded with randomly parked vehicles. Randomly, without any order. What is the meaning of randomly? Without any order. So randomly these vehicles are parked. An official from the MC said, "We have done our part." See, the street is overcrowded with randomly parked vehicles, not properly parked vehicles, and official from the MC said. यहाँ पे ये write down the 1 number. क्यों लिखना है वो बाद में बताऊंगी. ओके, अंडरलाइन करके 1 नंबर लिख दो. एन ऑफिशियल फ्रॉम द MC said, फ्रॉम द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वन ऑफिसर इज देयर एंड ही said, we have done our part. We passed the orders properly. It's not our job to police the streets. देखो, कहीं पर भी होता है, गवर्नमेंट यही बोल देती है ना कि वी हैव डन आवर पार्ट, हमने रूल्स बना दिए. वी पास द ऑर्डर्स प्रॉपरली, हमने सारे ऑर्डर्स है वो प्रॉपरली पास भी कर दिए पब्लिक तक. इट्स नॉट आवर जॉब टू पुलिस द स्ट्रीट. और फिर भी हर एक स्ट्रीट में जाकर पुलिस मीन्स टू ऑब्जर्व, टू कीप एन आई. ओके, जिस पर नज़र रखना, वो हमारा काम नहीं है. अपने हाथ झटक दिए. ओके, so have you written 1 number here? Okay, क्यों लिखा है वो बाद में बताऊंगी मैं. Even though years have elapsed since the delivery of the MCJ orders, we can see no visible efforts to correct the problem. Even though years have elapsed means past, इतने साल निकल गए. Okay, सिंस द डिलीवरी ऑफ द MCJ ऑर्डर्स, MCJ ने, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ जालंधर ने इतने सारे ऑर्डर्स पास किए, उसको इतने सालों बीत गए.
we can see no visible efforts to correct the problem. What is the problem? The problem is the chaotic traffic situation in the city. Okay, so since years have passed, then also people, they cannot see any visible effort to solve the problem of traffic situation in the city. It looks as if the orders were passed only to complete the official formalities and not for implementation. और ऐसा लग रहा है, it looks as if, ऐसा लग रहा है, the orders were passed only to complete the official formalities, है ना. गवर्नमेंट को ये चीज़ें पूरी करनी है, पेपर पे दिखानी, और इसीलिए ये फॉर्मेलिटी कर दी, ऑर्डर्स बना दिए, ऐसा लग रहा है. एंड नॉट फॉर इम्प्लीमेंटेशन. इम्प्लीमेंटेशन मीन्स फॉर यूज़. ओके, ये ऑर्डर्स है, कुछ यूज़ में आ रहे कि नहीं वो नहीं देखा, सिर्फ बनाकर रख दिए. अंडरस्टूड दिस फर्स्ट रॉ. ओके, नाउ सेकेंड रॉ. द MC ओरिजिनली बिल्ट अ पार्किंग जोन for the public by taking over some land from the Nehru Garden area. Originally means in fact municipal corporation built a parking zone. Parking zone means जहाँ पर cars जो 4-wheeler 2-wheeler से वो पार्क किया जाता है. So municipal corporation originally built a parking zone for the public by taking over some land फ्रॉम द नेहरू गार्डन एरिया. नेहरू गार्डन एरिया में से कुछ लैंड लेकर और वहाँ पर पार्किंग जोन बनाया है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने. बट यूज़ ऑफ द जोन इज़ मोस्टली लिमिटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉरपोरेशन एंड अ फ्यू नियर बाय बैंक्स. द यूज़ ऑफ द जोन इज़ मोस्टली लिमिटेड टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉरपोरेशन एंड अ फ्यू नियर बाय बैंक्स. लेकिन ये जो पार्किंग जोन बनाया है ना, दिस पार्किंग जोन इज़ यूज्ड बाय द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कॉरपोरेशन. जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर पार्किंग जोन बनाया है. लेकिन वो पार्किंग जोन है सिर्फ कौन यूज़ कर रहा है? ओनली द एम्प्लॉयज़ ऑफ कॉरपोरेशन एंड फ्यू नियर बाय बैंक्स. आसपास की जो बैंक्स हैं उसके कुछ एम्प्लॉयज़ हैं वही यूज़ कर रहे हैं. अंडरस्टूड. When the Tribune visited the parking area, there were just 15 cars and around 30 scooters parked. The Tribune. What is the Tribune? The Tribune is a name of newspaper. It is the name of newspaper. Newspaper. ओके, न्यूज़पेपर का नेम है ये. अलग अलग न्यूज़पेपर्स होते हैं ना, जैसे यहाँ पर है लोकल हमारा जो आता है दिव्य भास्कर है, ओके, संदेश है, फिर गुजरात समाचार है. इंग्लिश न्यूज़पेपर में हिंदुस्तान टाइम्स है, टाइम्स ऑफ इंडिया है. ओके, सो दीज आर न्यूज़पेपर. तो द ट्रिब्यून भी ऐसा ही एक न्यूज़पेपर है. विजिटेड द पार्किंग एरिया. द ट्रिब्यून ने जब ये पार्किंग एरिया विजिट किया, देयर वर जस्ट 15 कार्स. जो पार्किंग एरिया MC ने बनाया था ना, only 15 cars and 30 scooters were parked there because it was used by only the employees of MC and the nearby banks, most of which belong to these employees only. At the same time, there were long queues of vehicles parked along the sides of roads. At the same time, देखो, जब ये ट्रिब्यून ने, आप लोगों को पता होगा न्यूज़पेपर वाले हैं ना, वो सब जगह पर पहुंच जाते हैं, है ना, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए. डायरेक्ट आप लोगों को रिपोर्ट देंगे, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो दिखाएंगे. ओके, तो ये पहुंच गए न्यूज़पेपर वाले पार्किंग एरिया में. तो वहाँ पर कितने व्हीकल्स हैं? ओनली 15 कार्स एंड अराउंड 30 स्कूटर्स वर पार्क्ड इन द पार्किंग एरिया. एंड एट द सेम टाइम देयर वर लॉन्ग क्यूज ऑफ व्हीकल्स पार्क्ड अलॉन्ग द साइड्स ऑफ रोड्स. पार्किंग एरिया दिया है, फिर भी रोड की दोनों साइड पर बहुत लंबी लंबी लाइन में व्हीकल्स पार्क हुए थे. सो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, पार्किंग एरिया है फिर भी व्हीकल्स है वो रोड पर पार्क हुए हैं. व्हीकल्स ऑन द रोड वर पार्क्ड इन अ haphazard manner, blocking the flow of traffic. जो रोड पर व्हीकल्स हैं वो हफाडस मीन्स it means not planned.
ओके, यानी कि कोई भी प्लानिंग के बिना पार्क किए हुए थे, ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक एंड बिकॉज दे वर नॉट प्रॉपरली पार्क दे वर ब्लॉकिंग द फ्लो ऑफ ट्रैफिक। आप लोगों ने देखा होगा कितनी बार रोड के साइड्स पे जो व्हीकल्स पार्क किए होते हैं उसकी वजह से ट्रैफिक है वो ब्लॉक हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। ओके, द ओनली नो पार्किंग साइंस वर फाउंड The only no parking signs we found were in hidden corners. No parking लिखा हुआ है, फिर भी वहाँ पे व्हीकल्स पार्क है और नो पार्किंग साइन बोर्ड जो है वो सिर्फ कोने में देखने को मिलते थे। ओके, जिसे छुपा दिए हो वैसे। अंडरस्टूड? नेक्स्ट पैराग्राफ। द बिजी एरिया is famous for big chemist shops, bakeries, roadside eateries and shoe shops. And this busy area is famous for big chemist shops. Chemist means पता है ना, chemist the person who sells medicines. ओके, तो मेडिकल स्टोर्स हैं, बेकरीज हैं, रोड साइड ईटरीज, ये सबसे ज़्यादा केओस खड़ा करती हैं। जहाँ पर रोड साइड ईटरीज होती हैं ना, जो ये खुमचे लगे हुए होते हैं रोड के किनारे पर, पानी पूरी वाला है, बेल वाला है, ओके, तो ये सब के वो ईटरीज होती है ना रोड साइड, एंड शू शॉप्स, ये सारी चीज़ें हैं, ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक खड़ा करती हैं। रैनक बाज़ार एंड दिलखुश बाज़ार विद द नैरो लेन्स एंड हैवी vehicular flow have turned into a nightmare for shoppers. रैनक बाज़ार, ये जो बाज़ार के नेम दिए हुए हैं, दिलखुश बाज़ार, हो सकता है कि कॉम्प्रीहेंशन में कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि विच बाज़ार इज़ डिस्क्राइब्ड हियर, और नेम द बाज़ार्स, गिव द नेम्स ऑफ बाज़ार्स डिस्क्राइब्ड इन दिस पैराग्राफ। ओके, सो ये रैनक बाज़ार एंड दिलखुश बाज़ार, ये दो बाज़ार हैं, और पीएनबी चौक और ज्योति चौक, ये दोनों क्या हैं, स्ट्रीट्स हैं। ओके, सो हियर रैनक बाज़ार एंड दिलखुश बाज़ार मार्केट विद द नैरो लेंस, आप सेम एज आप विजुअलाइज करो जो हमारा ये माधोपुरा, कालूपुर, सारंगपुर, लाल दरवाज़ा की जो पतली पतली गलियां हैं ना, सेम वही सिचुएशन जालंधर में है। ओके, नैरो लेंस एंड हैवी व्हीकुलर फ्लो, यानी बहुत सारे व्हीकल्स एक साथ वहाँ से निकलते हैं। हैव टर्न इनटू अ नाइटमेयर फॉर शॉपर्स, जो शॉपर्स हैं वहाँ के शॉपिंग करने वाले और जिनकी वहाँ पर शॉप्स हैं, वो सबके लिए एक नाइटमेयर है। नाइटमेयर मीन्स बहुत ही डरावना सपना है। ओके, सोचो अगर आप ऐसी जगह से निकल रहे हो और ट्रैफिक जाम है और निकलने के कोई चांस नहीं लग रहे घंटे 2 घंटे तक, व्हाट यू विल डू? इट इज़ द नाइटमेयर फॉर यू ओनली। ओके, अंडरस्टूड? एंड नेक्स्ट वन इज, बट द ट्रैफिक पुलिस ब्लेम दिस नाइटमेयर ऑन दिस सेम शॉपर्स। लेकिन ट्रैफिक पुलिस है वो ये चीज़ है जो डरावना सपना है, ये कि ट्रैफिक बहुत सारा है, ये सपना नहीं, ये हकीकत है, फैक्ट है। ओके, तो ट्रैफिक पुलिस किसे ब्लेम करते, ये ट्रैफिक सिचुएशन के लिए शॉपर्स को ही ब्लेम करते। क्यों करते? दे क्लेम दैट व्हेन अ पार्किंग एरिया was constructed on a building operate transfer basis in August 2006, the public failed to utilize it. वो क्या बोल रहे हैं कि जब पार्किंग एरिया 2006 में बिल्ड कर दिया था, बना दिया गया था, ऑपरेट हो रहा है, ट्रांसफ़र बेसिस पे काम हो रहा है, तो फिर पब्लिक हैं वो उसे यूटिलाइज मीन्स यूज़, पब्लिक failed to utilize it. People here do not abide by the rules. See, यहाँ पर आप 2 नंबर लिख दो। The traffic police, write 2 number here. The traffic police, okay, 2 number. People here, so this is the speech of traffic police. ये कौन बोल रहा है? ट्रैफिक पुलिस।
People here do not abide by the rules. These same people would never run a traffic signal abroad, but here they need constant supervision, which is impossible, said a traffic police officer. क्या बोल रहे ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर कि पीपल हियर डू नॉट अबाइड बाय द रूल्स, दे डू नॉट वांट टू accept the rules made by MCJ, and this same people would never run a traffic signal abroad. और यही लोग हैं जब विदेश जाते हैं ना तो कभी भी ये ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की हिम्मत नहीं करते. ओके, दे वुड नेवर रन अ ट्रैफिक सिग्नल अब्रॉड, बट हियर दे नीड कॉन्स्टेंट सुपरविजन. जब यही लोग विदेश से जब इंडिया आ जाते हैं तो इन्हें उनके ऊपर नज़र चाहिए, कांस्टेंट सुपरविजन चाहिए, विच इज़ इम्पॉसिबल, और ये पॉसिबल नहीं है. व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट पॉसिबल इन इंडिया? इट इज़ नॉट पॉसिबल. पीपल ब्लेम द अथॉरिटीज़, पीपल ब्लेम द सिस्टम फॉर द chaos इन सिटी और कंट्री, बट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? हम कोसते हैं गवर्नमेंट को, ट्रैफिक के लिए कोसते हैं, और भी दूसरी जो हमें डिस्कम्फर्ट्स होते हैं उसके लिए हम कोसते हैं. रोड ख़राब हो गए हैं, चलो ठीक है, उसमें तो गवर्नमेंट का हाथ है, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं. वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैफिक केओस. वाई? बिकॉज हम लोग बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, लेकिन क्या हम लोग कभी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हम ठीक से व्हीकल पार्क करते हैं? हम लोग क्या देखते हैं कि जहाँ से हमें शॉपिंग करनी वहाँ से नियरेस्ट जगह जो है वहीं पर हम लोग व्हीकल पार्क कर देते हैं. ओके, सो थिंक ओवर इट एंड राइट योर पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट पार्ट इज, बट द पीपल who frequent some of the city's oldest bazaars in the area have their own justification. मीन्स यहाँ के जो लोग हैं जो हमेशा बाज़ार, जो ओल्डेस्ट बाज़ार्स हैं इस एरिया के, उसे फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, उनके अपने खुद के ही रिव्यूज़ हैं. ओके, अपने खुद के ही आइडियाज़ हैं. विच आर द आइडियाज़? A passing student told this reporter, जो द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर के रिपोर्टर्स हैं ना, वो यहाँ से निकल रहे थे. तो पासिंग स्टूडेंट टोल्ड दिस रिपोर्टर, यहाँ पर 3 नंबर लिखो. अ पासिंग स्टूडेंट टोल्ड दिस रिपोर्टर द अथॉरिटीज़ चार्ज टू मच फॉर पार्किंग. अथॉरिटीज़ हैं वो पार्किंग के लिए बहुत ज़्यादा हाई चार्ज लगाती हैं. हु विल पे $25 फॉर ओनली 15-20 minutes. बक्स ईयर मनी, ये जालंधर की बात है तो हम लोग इसे लिखेंगे रुपीज़. ओके, ₹25. हाउ मच MC चार्ज फॉर पार्किंग? $25, 25 रुपीज़ फॉर ओनली 15-20 minutes. अगर आपका काम 15-20 minutes का है तो कौन 25 रुपीज़ देकर अपने व्हीकल को कार पार्किंग में पार्क करेगा? इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू गज़ल अ टमेटो सूप एंड हैव अ क्विक बाइट एट द टिक्की कॉर्नर, यू शुडंट हैव टू पे सो मच. इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू गज़ल अ टोमेटो सूप, गज़ल मीन्स क्विकली ड्रिंक. ओके, फटाफट से टमेटो सूप पीना है और फटाफट से टिक्की कॉर्नर पर जाकर क्विक बाइट लेना है, यानी कि फटाफट से टिक्की खाकर तुम्हें आना है. यू शुडंट हैव टू पे सो मच. ओके, 20 रुपीज़ की टिक्की खाने के लिए 25 रुपीज़ पार्किंग चार्ज कोई भी नहीं करेगा. इट मीन्स पार्किंग चार्जेस आर वेरी हाई. With the shoppers flouting traffic and parking rules and the authorities and people indifferent to the problem, the situation is doomed to chaos. With the shoppers flouting, शॉपर्स हैं जो शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर आते हैं. फ्लाउटिंग मीन्स, फ्लाउटिंग का मतलब है इंटेंशनली नॉट ओबेइंग द रूल. इंटेंशनली नॉट ओबेइंग रूल.
शॉपर से जानते हैं कि हम लोग पार्क करेंगे यहाँ पर. They know that if they park their vehicles on road, it will create the traffic chaos. Then also they park their vehicles on road to avoid the charge, which is very high, 25 rupees. Okay, so that because of the shoppers not obeying the traffic rules and parking rules and the authorities मतलब जो गवर्नमेंट है, जिन्होंने रूल बनाकर छोड़ दिया, ऑब्जर्व हो रहे कि नहीं, फॉलो हो रहे कि नहीं, वो नहीं देखे. एंड द पुलिस इनडिफरेंट टू द प्रॉब्लम्स, और पुलिस है उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस 3 shoppers flouting traffic rule and parking rules, the authorities and police, because of these 3, the situation is doomed to chaos. Doomed to means, to be doomed to means worsening the situation which cannot be avoided. ये तीनों रिस्पॉन्सिबल हैं इस chaos के लिए. Which chaos? The traffic chaos, the chaotic traffic situation in Jalandhar city. Who is responsible for that? Shoppers flouting traffic and parking rules, the authorities and police. Police means traffic police. Okay, these people are responsible for the chaotic situation of traffic and it is worsening day by day. दिन पर दिन उसकी हालत ख़राब होती जा रही है. Okay, understood the article. This thing we will consider as newspaper article. ओके, इसे हम बोलेंगे, इसे लेसन नहीं बोलेंगे, चैप्टर नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल. ओके, ये न्यूज़पेपर में से लिया गया है, शॉर्ट है. ओके, डू यू एन्जॉय इट? मज़ा आया न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने में? अगर न्यूज़पेपर ये पढ़ते तो आप लोग पढ़ते ना ये सारी चीज़ें. ओके, नाउ try to understand why I have told you to write 1, 2, 3. 1 means the police. 1 means the official of MC. 2 means the traffic police and 3 means the student. Okay, ये 3 लोग थे. There are 3 people. ये 3 लोग थे. They gave their point of view. तीनों ने अपनी अपनी बातें रखी. Okay, the chapter's name is points of view. Okay, so I am explaining you what is point of view. Point of view is one's own understanding and one's own thoughts. जो भी किसी चीज़ के बारे में अपने आइडियाज़ दे रहे हैं ना, that is called point of view. यहाँ पर जो ऑफिशियल है उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है. सिचुएशन सेम है, द सिचुएशन इज सेम. द ऑफिशियल told that they have done their part, they have passed the orders properly, and it is not their duty to police the streets. Okay, and what is the point of view of traffic police? That even though the parking area is available, then also people, they are not ready to accept the rules, and the same people, they follow all the traffic rules abroad, but they need the constant supervision in our country. So it is impossible to observe all these things. So this is the second point of view of the traffic police. Now the third point of view is given of a student. Okay, student का दिया है, और student अपना point of view रख रहा है कि if one wants to have quick snacks, अगर किसी को फटाफट से कोई स्नैक्स खाने हैं, बिकॉज इट इज़ शॉप, रोड साइड ईटरीज़ है वहाँ पर. ओके, तो अगर किसी को फटाफट से नाश्ता करना है, स्नैक्स खाने हैं, तो वो क्या 25 रुपीज़ देकर 15-20 मिनट्स के लिए नाश्ता करने के लिए रुकेगा? ओके, यानी कि नाश्ता करने के लिए वो क्या 25 रुपीज़ पार्किंग चार्ज देगा, सो दैट दे आर पार्किंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. सो दीज are the 3 point of view and they all are right on their place. ये तीनों लोग अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, कोई गलत नहीं है. ओके,
सो कोई भी एक सिचुएशन होती है, कोई भी एक प्रॉब्लम होती है ना, उसके अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू होते हैं लोगों के. सो दिस इज कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू. आई होप यू अंडरस्टूड all these things. Okay, and I will explain you different activities. This chapter is lengthy because I have to explain you different activities, as well as one poem is also given in this chapter. Okay, so in next lecture I'll explain you different activities, but before that you have to revise direct indirect speech. सब लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो रिवाइज करके रखना बिफोर द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ओके, सो बी केयरफुल and stay safe. Bye.